We shift our focus to other news. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has taken a fresh dig at Congress leader Rahul Gandhi, saying that Rahul is the biggest star campaigner for the Bharatiya Janata Party. He said, and I quote, "Wherever Rahul Gandhi goes, Congress will lose. He is so uninspiring and so arrogant. He has no leadership qualities. He is the biggest star campaigner of the BJP. Meanwhile, Congress has hit back at Himanta and said that they do not need a certificate from the Assam Chief Minister. Let's quickly listen in to this war of words. जहां से ही राहुल गुजरेगा वहां ही कांग्रेस खत्म होगा. जो कुछ भी बसा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा. बिकॉज ही इज सो अनइंस्पायरिंग, सो मच एरोगेंट. उनका कोई लीडरशिप का क्वालिटी है ही नहीं. जहां में वो पाव रखेगा वही स्थान, वही इलाका बीजेपी के लिए एकदम बढ़िया हो जाते हैं. स्टार कैंपेनर हमारे लिए असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हमें खूब प्रचार मिला असम के मुख्यमंत्री से. और आज कल नीतीश कुमार के विश्वासघात के बाद देखिए आप, किशनगंज की जनता, बिहार की जनता भरपूर उत्साहजनक स्वागत दे रही है राहुल गांधी जी को और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को. तो हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए असम के मुख्यमंत्री से या बिहार के मुख्यमंत्री से. सर, यहाँ क्या तेजस्वी यादव को आप लोग बुलाएंगे अलायंस को लेकर? किसको? यादव को, जो आप लोग की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उनको बिल्कुल, हमने निमंत्रण सभी को दिया है. ममता जी को भी दिया था, हमने नीतीश कुमार जी को भी कहा था, पर वो तो गिरगिट निकले. देखिए, उस बेचारे को तो अपनी कुर्सी बचानी है. नया नया गया है वहां. लोगों का विश्वास उससे जम नहीं रहा है कि कांग्रेस में था उसके साथ विश्वासघात कर सकता है तो हमारे यहां भी कभी कर सकता है. तो उसका इस्तेमाल हो रहा है. जब जब वो अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, कोई ऐसे ही बयान गांधी परिवार पे वो हमला कर दें. All right, so there you heard my colleague Mahima Kataria joins us on the broadcast. Mahima, if you can take our viewers through this latest war of words, it seems as though the Assam Chief Minister has something to say against the Congress party on an almost daily basis now. And today we see that the several leaders of the Congress party have also come out and now given a reply to Himanta Biswa Sarma. We know that the Bharat Jodo Nyay Yatra, Mahima, has also entered Bihar today, which has been in the news for the past 3 days ever since a shocking U-turn by Nitish Kumar. Well, rightly said, they've political upheaval once again that engulfed Bihar as Nitish Kumar joins NDA and sworn as the 9th time Chief Minister of Bihar. But nonetheless, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has taken a fresh dig at Congress leader Rahul Gandhi, stating that the latter is the biggest star campaigner for Bharatiya Janata Party. And Assam Chief Minister Himanta Biswa states, and I quote, that wherever Rahul Gandhi goes, Congress will lose there. And he is not inspiring. He's so arrogant that he has no leadership qualities. He's a big star campaigner of BJP. Now we need to understand, Devika, that this particular statement comes when did this war of word began? So during the Assam leg of the Bharat Jodo Nyay Yatra, like you correctly pointed out that it is going to enter Bihar now, but during the Assam leg of the Bharat Jodo Nyay Yatra, Guwahati police had registered an FIR against Gandhi and other Congress leaders, including KC Venugopal and Kanhaiya Kumar, for allegedly instigating a crowd to launch an attack on police personnel. After the FIR, while addressing a gathering in the state, Gandhi had dared Sarma to file as many cases as he can. Later, Sarma shared that an SIT will be formed to probe the case and those responsible would be arrested. In another instant, Devika, of the political rivalry, Gandhi had called Sarma the most corrupt chief minister, addressing people at the rally during the Bharat Jodo Nyay Yatra in Assam, Lakhimpur. He stated that Sarma is the most corrupt chief minister, and later Sarma hit back with the post describing Gandhi family as the most corrupt and Gandhi family's role in a number of scams. But a new drive that has been taken by Himanta Biswa Sarma, where he has called Rahul Gandhi the big campaigner for Bharatiya Janata Party. Okay, Mahima, stay on with us. Anshu Awasthi and Raman Malik joining us on the broadcast. Anshu Awasthi of the Congress, I'll give you a chance to put out your point of view first. Himanta Biswa Sarma there saying that wherever Rahul Gandhi will go, certainly the BJP will win because he is uninspiring and arrogant.
What does the Congress party have to say? कि हिमंता विश्व शर्मा जो उनको जिम्मेदारी असम की जनता ने दी है वो उसको तो नहीं निभा पा रहे हैं, लेकिन हाँ वो एक बयानबाजी करके सिर्फ चर्चा में रहना चाहते हैं। ठीक है, कम से कम राहुल गांधी जी का नाम लेकर ही उनकी दुकान चल रही है। बाकी उनके पास ये समझ में आ गया है कि बीजेपी के गोदाम में अभी कुछ बचा नहीं। अगर बचा होता तो निश्चित तौर से बीजेपी की बात करते, मोदी की करते, अमित शाह की करते, जिनकी कृपा पर वो मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर ऐसा वो कहते हैं तो फिर क्यों राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की? उन्होंने कोशिश तो की, क्या रोक पाए यात्रा को? क्योंकि देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। राहुल गांधी जी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। सरकार सिर्फ उद्योगपति अपने मित्र के लिए काम कर रही है जिसकी आमदनी रोज 1600 करोड़ रुपए रोजाना है और देश के आम आदमी की आमदनी 27 रुपए है। तो आज इसीलिए लोग राहुल गांधी से चिड़े हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी जनता की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कभी इस तरीके की उलूल जुलूल बयानबाजी करते हैं, कभी वो धर्म की बात करते हैं, लेकिन कभी देश के लोगों के हितों से जुड़ी बात नहीं करते। हमें बताइए ना, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात हुई थी, कहाँ है रोजगार? आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जो लोग 400 का गैस सिलेंडर महंगा बताते थे वो 1200 का बेच रहे हैं। तो जनता इनका सच जान चुकी है। सामाजिक जनगणना, जो जाति जनगणना की बात थी, भाजपा उस पर चुप है। अपने मंत्रियों की जाति बताते हैं लेकिन उन पर चुप रहते हैं। तो जनता इनका सच देख रही। 2024 में इनको सत्ता से बाहर करने जा रही हिमंता विश्व शर्मा को जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को जो एक असीम प्यार मिला है असम में, वहां के जो विश्वविद्यालय के जो छात्र थे जिन्हें कन्वर्सेशन करना चाह रहे थे राहुल गांधी जी, और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोका, सरकार ने रोका और उन छात्रों ने सड़क पर आकर मुलाकात की। तो ये हिमंता का फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेट होने दीजिए। जनता इनको सत्ता से बाहर करने जा रही है। Okay, all right. Raman Malik, you've heard what the Congress party has had to say. How does the BJP respond? देखिए, मैं आशा करता हूं कि जितना शांति से मैंने इनको सुना है उतना ही सुनेंगे। देखिए, जहां तक राहुल गांधी का विषय है और कांग्रेस का विषय, ये एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस 14 बारी राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश करती है और राहुल गांधी 14 बारी फेल होते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, पहली बात। दूसरी बात, 55 से लगभग 55 या 58 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी है। उसके बाद भी उनको कांग्रेस को राहुल गांधी की अटखेलियां प्यारी हैं। ये भी एक अपने में ही व्यंग की बात है। तीसरी चीज, जिन जातिगत जनगणना की बात करती थी कांग्रेस ने यूपीए राज के अंदर क्यों नहीं कराई? महंगाई की जहां तक बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से आमदनी बढ़ी है और यूएन की रिपोर्ट भी आई, यूएनएससी की रिपोर्ट भी आई। शांति से सुनिए। Anshu Awasthi, Raman Malik heard you out. Anshu Awasthi, no, Raman Malik heard you out. Anshu Awasthi, I will give you an opportunity. लेकिन किसकी बड़ी आपके Anshu Awasthi, let Raman Malik complete his point and then you can come in between. नहीं, झूठ कैसे चलेगा? मुझे आप बताइए ना। क्या आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो बीच में तो पब्लिक का तमाशा बनता है ना, बीच में पब्लिक का तमाशा बनता है। अगर आप में पेशेंस नहीं है दूसरे बंदे को सुनने की तो फिर आप मत आइए। जो भी झूठ बोल रहा उसे नंगा करो। चौथा स्तंभ मीडिया की जिम्मेदारी। मुझे आप बताइए ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बोलिए झूठ बोल रहा हूँ, या रमन मलिक अगर बोले तो आप बताइए ना। Okay, we leave it there. We leave the story there. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.